Hello students, we are studying about the foundation of the Mughal Empire, and in the previous video we had studied about the founder of the Mughal Empire who was Babur, and after the death of Babur, his eldest son Humayun sat on the throne of Delhi, but Humayun was defeated by Sher Shah and go to Iran, and now the throne of Delhi captured by the Sher Shah Suri. So today we will read about the Sher Shah Suri. Sher Shah was the son of a Jagirdar of Bihar. His real name was Farid Khan. Once he killed a tiger with his sword and was given the title of Sher Khan. He defeated Humayun and captured the throne of Delhi by his sheer courage and intelligence. Humayun had to live in exile for 15 years. He is remembered in Indian history as one of the ablest ruler of the medieval India. In the Battle of Chausa in 1539 and in the Battle of Kannauj in 1540, Sher Shah defeated Humayun. During his exile on 15th October 1542, Akbar was born to Humayun at the palace of the king of Amarkot, Veersal. तो स्टूडेंट, जो शेर शाह था वो बिहार के जागीरदार का बेटा था और उसका रियल नेम फारिद खान था। उसने एक बार एक टाइगर को बहुत ही बहादुरी से मारा और इस अपनी तलवार से मार दिया था और इसलिए उसको शेर खान की उपाधि मिली हुई थी। उसने हुमायूं को हराया और दिल्ली को कैप्चर कर लिया और फिर उसके बाद उसने हुमायूं को 15 इयर्स का देश निकाला भी दे दिया। वह इंडियन हिस्ट्री में अपने बहुत ही जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है उसे बहुत बहादुरी के लिए और एबल रूलर के लिए याद किया जाता है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि जनता की भलाई के लिए थे, उसकी प्रजा की भलाई के लिए थे। इन द बैटल ऑफ चौसा, चौसा की लड़ाई में 1539 में और कन्नौज की लड़ाई में 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और 15 इयर्स की अपने देश निकाला में जो हुमायूं को देश निकाला मिला था 15 इयर्स का, उसमें 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, जो कि हुमायूं जो वहां पर निर्वासित था तो अकबर का जन्म वहीं पर हुआ और वो स्थान का नाम था अमरकोट वीरसाल। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर खां, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेडिवल इंडिया हिस्ट्री का वह एबलेस्ट रूलर था, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हम इसमें देखेंगे। शेर शाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। शेर शाह स्टार्टेड मैनी रिफॉर्म्स इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा दैट वर फॉलोड बाय अकबर. Sher Shah divided his empire into regions and regions into sarkars, which were again subdivided into pargans. Officers in charge of sarkars and pargans were periodically transferred. He enforced equal laws for justice and introduced a reformed system of currency, the silver coin known as the rupee. He also restored the Grand Trunk Road, which is modern GT Road, which was built during the Mauryan period, running from the Calcutta to Peshawar. He built the city of Rohtashgarh on the banks of river Jhelum and Shergarh near Delhi. He built a grand mausoleum for himself at Sasaram in Bihar, which reflects his personality and is a fine example of art. In the field of education, he built many madrasas. Sher Shah ruled for only 5 years. He was killed in AD 1545 in an explosion of gunpowder during the siege of Kalinjar in Bundelkhand. The roads built by Sher Shah were known as the lifeline of the country. He believed in central power and the legislative, administrative and judicial powers were in his hands. He paid his official in cash. He got the survey and measurement of land done. He reinforced the spy system. The successor of Sher Shah were incompetent. Humayun took advantages of this situation. With the assistance of the Shah of Iran, he conquered Kandahar and Kabul. In this way, the Mughal Empire was established once again in India.
In the year 1556, Humayun died when he slipped from the stairs of his library. His son Akbar succeeded him. So student, शेर शाह मेडिवल इंडिया का एक ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। शेर शाह ने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, लैंड रेवेन्यू ये सारा बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था, जिसे अकबर ने बाद में फॉलो किया। शेर शाह ने अपने एम्पायर को रीजन्स में डिवाइड किया हुआ था, रीजन्स को सरकार में और सरकार को फिर से पारगन्स में, और हर एक सरकार पारगन्स के लिए ऑफिसर इंचार्ज होता था जो कि समय समय पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसके साथ साथ उसने एक करेंसी सिल्वर कॉइन भी स्टार्ट की जिसे रूपी के नाम से जाना गया, और उसने ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि आज के समय में जीटी रोड मानी है वह भी उसने उस समय में बनवाई। एजुकेशन के क्षेत्र में उसने बहुत सारे मदरसाज बनवाए, लेकिन वह सिर्फ 5 इयर्स तक रूल कर सका। उसके बाद फिर 1545 को एक्सप्लोजन में उसकी डेथ हो गई, और उसका जो सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इनकम्पिटेंट थे, और इसका फायदा हुमायूं ने उठाया, और इस तरह से उसने ईरान के शाह के साथ मित्रता करके फिर से कांधार और काबुल को जीत लिया। इस तरह से मुगल एम्पायर फिर से इस्टेब्लिश हो गया, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसके बाद अकबर, उसका जो बेटा था, वह राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं की जो डेथ थी वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। शेर शाह के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं कि जो रोड शेर शाह ने बनवाई थी उसे लाइफ लाइन, कंट्री की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसके साथ साथ उसने वह इस चीज में बिलीव करता था जो सेंट्रल पावर है और लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशियल पावर है वो अपने हाथ में होना चाहिए, तो वो इन पावर्स को अपने हाथ में रखता था, और जो उसके ऑफिशियल होते थे कुछ को वो कैश पेमेंट करता था, कुछ को वो जमीनें जागीरदार वगैरह बना देता था। इसके साथ साथ वह समय पर सर्वे भी करता रहता था, और जो लैंड होती थी उसका मेजरमेंट भी उसने करवाया। और शेर शाह ने ही स्पा सिस्टम, मतलब जो गुप्तचर व्यवस्था थी, उसी ने स्टार्ट की। मतलब उसके समय में बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत स्ट्रांग थी। जो स्पा सिस्टम था, जो गुप्तचर व्यवस्था थी, वो बहुत सुदृढ़ थी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द अकबर।